नहीं नहीं, काम तो करता है. व्हाट काइंड ऑफ काम? सो हाँ, creation, editing and manipulation in images. So Photoshop in itself is a versatile software, बहुत सारे काम कर सकता है. तो क्या अगर उन कामों को हम कैटेगराइज करें तो तीन ही चीज हो रही है हमारे, या तो हम क्रिएट कर पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं, या फिर मैनिपुलेट कर पा रहे हैं. अब यही तीन जो कंट्रोल्स हैं या ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये हम वीडियो में भी करने चाहिए. मतलब ऐसे कुछ टूल होना चाहिए ना कि यही तीनों काम हम वीडियोस पे ही कर पाए. तो वीडियोस को क्रिएट कौन करता है? कैमरा क्रिएट करता है. अगर 2D वीडियोस हैं, आई मीन शेप लेयर्स को लेके ऐसा कुछ हम एनिमेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर भी हेल्प कर सकता है ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस बनाने में हमारी. जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में हमने मोशन ग्राफिक्स बनाया, ठीक है, तो कैमरा भी कर रहा है और सॉफ्टवेयर से भी हम बना पा रहे हैं. अगर एडिटिंग की बात करें तो अब यहाँ पे उसके बाद क्रिएशन एक चीज का हो गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या जस्ट कर सकते हैं हम उससे मैक्सिमम, या तो एडिट किया जा सकता है उसको, या फिर मैनिपुलेट किया जा सकता है. दोनों ही अलग चीज है. सबको क्लियर है? ठीक है. सो जब अब क्या है, क्रिएशन और मैनिपुलेशन का नेचर अपना अलग है ना. दोनों का नेचर वाइज, दोनों ही काम, हर एक काम का अपना नेचर होता है. सो दोनों का काम का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. तो जो काम इमेजेस में एक सॉफ्टवेयर को यूज करके हो पा रहा था, फोटोशॉप को, वीडियो के केस में, क्योंकि वीडियो एक कॉम्प्लेक्स डेटा है अब, तो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर्स बनाने Or पड़ते हैं. can you speak more in English? अच्छा, ये भी है ना. ओके, यू नॉट इन Sorry. फ्रंट ऑफ मी, आई फॉरगॉट यू. So It's fine. It's now fine. as we have yes, now as we are doing editing also and manipulation also, the nature of both the stuff is completely different. So compositing can only be happened in layers. So as you know that After Effects is a layer based software and we work in layers, but editing in its nature is sequence based. So we have to go forward, we cannot move upward while editing, we have to move forward in sequence. So dono ka nature is completely different. So for both the purpose we have two softwares now, After Effects and Premiere. So Premiere will handle your editing and After Effects is handling creation and manipulation. Okay, you can also edit videos in After Effects, but for example if you're starting with a video, you're starting editing a video and you bring that video in After Effects and at the same time you're bringing in Premiere also, Premiere will do it quite fast with least efforts. And in case of After Effects, it may become complicated. It'll take a lot of time, a lot of efforts out of you. So Premiere is good for editing stuff. Okay, so yes, so before stepping into video editing, we should also know what a video is and what editing is. है ना? तो video क्या होता है? Any idea? Group of multiple shots, frames, Group of multiple frames, multiple frames. frames. Okay, ठीक है. इसको और हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे. सो यस, पहले हमें एक चीज समझनी है. We need to understand one thing, that software which we are working upon doesn't discriminate between an image and a video. So in software's perspective, image and video is just one thing. ठीक है. तो image भी video है और video भी image ही है. ठीक है. In case of video there are multiple images, and in a single frame in an image there is just one image, one single frame. So there is no difference. All right, rest. So how can we define a video? Sequential images running, playing at a particular speed, giving us the illusion of motion is called a video. ठीक है. So this is how we can define a video. Sequential images running, or it also playbacks.
playing at a particular speed giving us the illusion of motion is called a video. अब इस definition का मतलब क्या है? How can we now elaborate it a bit? So sequential images, all right. Images जो होनी चाहिए, it should be in sequence now. It cannot be random images. So we start with random images. Of course, you will get a video, but that will be more of a slideshow, है ना? Rather than a flow, it will be a slideshow of random images. So video happens in flow, continuous flow. ठीक है? So sequential images, for example, if you're walking, so we need to have your steps, frames of your steps by steps, we need to have frames. ठीक है? Sequential images running or playing back at a particular speed. So now there is one particular speed. कोई चीज प्लेबैक करे, समथिंग इज प्लेइंग, वो स्पीड में ही करेगी, कोई स्पीड होगी इसकी फ्लिप होने की. सो व्हाट इज दिस स्पीड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? frames per second. Frames per second. So the unit is frames per second or FPS. Unit of speed in case of video is FPS. All right. And we are talking about a particular speed. So there must be some standard. इतना ही होना चाहिए, है ना? तो वो कितना होना चाहिए? 24. 24. Yes, 24 FPS. 24 FPS होना चाहिए for a standard video. ठीक है? अब why just 24? है ना? Why not 1000? And why not 1000? Why not in lakhs but just 24? ऐसा क्यों? 24 ही क्यों आया? हमने और FPSs देखे हैं, और we have seen many videos in different FPSs. For example, now in market we can see different cameras we have which can shoot 60 FPS, 120 FPS. In our phone also we have more than 24 FPS video we can shoot. So again, a standard is a standard and it is 24 FPS. Why this is happening? Because this is our speed or our capability of perceiving things in such a speed and in this speed. And what that is called? That is called उसको क्या बोलते हैं? मैं वो टर्म भूल गया. Persistence of vision. This is what it is called. Persistence of vision. What is persistence of vision? So this persistence of vision is the basis of why we are having this 24 FPS in a second. That means 24 images in a second. एक सेकंड का वीडियो शूट करना है तो हमें 24 इमेजेस क्लिक करनी पड़ेंगी, ये बोल रहा है. So why 24? Because of persistence. What is persistence of vision? So for example, if you are looking in front right now at your screens, सामने देख रहे हैं अभी हम, wall है. If I move my head, turn my head this side to the right, so होगा क्या? This thing which is happening in the right will take some time to enter my experience. वो जो transition होगा in between, there must be some space for transition, and the second shot which I'm looking at will happen inside me after 1/24 of a second. Till that time, the first frame will be the first shot or the first experience is happening inside me. It will take this much time, ठीक है, to perceive. तो इसकी वजह से ही we have 24 frames in a second to match that persistence of vision. ठीक है? All right, so this is one thing. So for example, अगर हम videos की बात करें, videos देखें यहाँ पर,
So this is a video, है ना? ये काफ़ी बड़ा वीडियो है, इसमें से हम कुछ पार्ट विल एक्सट्रैक्ट इट आउट. लेट्स सी जहाँ पे मोशन है, आई नीड मोशन with this crowd. From here, from here till here, this is fine. ठीक है, एंड लूप में चल रहा है. ऑलराइट, सो अच्छा, इस पे हम एक चीज और कर सकते हैं. वी हैव इन हियर वी हैव a movie inspector which will show us the properties and something to edit the video. AV control, देखो एडिटिंग यहाँ पे भी हो सकती है ना? सो अच्छा, यहाँ पे अगर हम वीडियो को देखें, वी लुक इनटू द प्रॉपर्टीज, सोर्स लिखा है फॉर्मेट इज H.264, दिस मेनी millions of pixels, and movie FPS is 24. So now we can see we have two layers of FPSs, two layers of speed. And what are these two layers? पहले तो ये समझना है हमें. दो layers आ गए ना, movie FPS and playing FPS. So two layers of FPSs. So what are these two layers? For example, if we are recording something from the camera, so camera will also have its own speed of capturing images. Once we have the video made, and as we bring it into the software can also do something on top of it. It can also change the speed. So that is playback speed. And from the camera we are having this movie FPS, recording FPSs. So दो layers समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है, movie FPS is 24 and playback FPS is again 24, इसके आसपास. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? See, we can also increase or decrease the speed right now. So अभी ये ओरिजिनल वैल्यू पे चल रही है, नॉर्मल स्पीड पे. इफ आई इंक्रीज दी स्पीड टू ट्वाइस, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? अब क्या हो रहा है? बढ़ गया ये, है ना? प्लेबैक बढ़ गई ना, मूवी एफपीएस इज स्टिल सेम. सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? The motion becomes faster. अच्छा, ऑनलाइन ऐसा दिख रहा है तेज हो गया, वीडियो तेज हो गया. बट व्हाट इज दिस थिंग दैट वी आर कॉलिंग इज एज फास्ट? क्या किया प्लेबैक? ये प्लेयर क्या कर? प्लेयर ने ड्यूरेशन कम करके ड्यूरेशन कम कर दिया. सो दैट मीन्स दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड ड्यूरेशन. देयर इज अ रिलेशन. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन? So the relation is inversely proportional. So if you increase the speed, time will decrease. decrease by half, ऐसे ही होना चाहिए. Okay, तो ये relation हमें दिख रहा है. Okay, again, what this player, this is basically a player, MOV player, QuickTime player. What this player is doing, how it is increasing the speed and decreasing the time taken. By increasing the number of frames per second. नहीं, वो नहीं कर सकता ना ये, because the frames are now made, they are printed, they are actually formed, they are filmed. It cannot make new frames. For example, if you have, let's say, मेरी बात पे ध्यान दो, you have 1 second का video, alright, we have a video of 1 second, and that video is of 24 FPS. ठीक है, we have 24 frames, that means we have 24 frames and the FPS is 24 FPS. How long it will take to finish? 1 second. We just have 24 frames, we don't have any more frames. So for example, if I increase the speed to twice, now what will happen? हाफ सेकंड में फिनिश हो जाएगा. हाफ सेकंड में कैसे फिनिश हो गया? 24 images now
They are taking half of the time. What is actually happening here? कैसे हो सकता है ऐसे? So player जो है वो जो 24 frames थे उनको half the time में दिखा रहा है. Otherwise you ओके can- ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं वापस. हाफ टाइम में दिखा देगा. सो फ्रेम का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. फ्रेम इज व्हाट? It is also an image, and frame is what? It is also a unit of time. है कि नहीं है? Frame, हम image को भी frame बोल रहे हैं और frame unit of time भी. How it is a unit of time? So for example, if we working in time, we have this time code which is digitally encoded time. Time are not digits, but we are having this idea. From this idea of numbers, we are assuming what time is it. ठीक है? So what is time code? This is time code. Okay, what format is it? frame, seconds. Yes, so if I start from here, so hours, minutes, seconds, and frames. So frames are also a unit of time, and we cannot go down below one frame. Now tell me what is happening. अब Probably it is skipping frames. तो यही option रह गया. है? Motion इतना तेज हो गया कि frames ही skip कर रहा है. तो प्लेयर क्या कर रहा है? प्लेयर के पास 24 फ्रेम्स हैं और उसको 24 के 24 फ्रेम्स चलाने हैं. इट इज हैविंग जस्ट वन सिंगल सेकेंड और उसको 24 फ्रेम्स चलाने हैं. अब वो जल्दी जल्दी कैसे चलाएगा? स्किप ही करेगा वो तो. सो नाउ इट इज स्किपिंग फ्रेम्स टू प्ले बैक ऑल दोस 24 फ्रेम्स in half a second, in 12 frames of time. है ना? ऐसा नहीं कर सकता कि वो प्लेयर अपने अंदर 2 हाफ में डिवाइड कर दे ना स्क्रीन को और 2 फ्रेम्स एक साथ दिखा दे. ऐसा भी हो जाता तो फिर तो हो जाता. बट नाउ इट इज स्किपिंग 1 फ्रेम and playing the alternate frames. So this way, if you perceive it, we can actually see the motion happening faster, but at the same time, we can also see a lag in this footage. Lag bhi aa gaya because now it is skipping frames. ठीक है? तो एक ये चीज हो गई. एंड अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो अब क्या कर रहा है प्लेयर? नाउ व्हाट इट शुड डू? हाँ, Frames को smooth move कर रहा है. स्लोली चल रहे हैं, अब स्लोली फ्लिप हो रहे हैं. सो व्हाट इज द स्लो? व्हाट इज दैट व्हिच वी आर कॉलिंग स्लो? नाउ व्हाट द प्लेयर इज डूइंग So the है तो 24 फ्रेम्स अगेन. फ्रेम्स ज़्यादा नहीं हो सकते, फ्रेम्स बढ़ नहीं सकते. जितना हमने शूट किया, हमने हाथ अपना यहाँ से यहाँ मूव किया दिस डिस्टेंस एंड वी रिकॉर्डेड इट. प्ले कैन नॉट टेक माई हैंड बियॉन्ड द मोशन. the time period for particular frame has been increased. So now 1 frame of image is taking 2 frame of time. एक फ्रेम रुक रहा है एक फ्रेम के लिए, एक इमेज रुक रही है एक और फ्रेम के लिए. So now we can see a lag again. ये समझ में आया? जब फास्ट वीडियो को चला रहे हैं तो स्किप हो रहे हैं फ्रेम्स और स्लो चला रहे हैं डीले दिख रहा है हमें. Okay, so this can happen in playback. While playing it back, this will happen. All right, तो ये playback speed हमें समझ में आ गई. Okay, now let's come to the FPS of movie FPS or recording FPSs. So, for example, let's understand this, that the standard is 24 FPS for a smooth video.
what will happen if we drop the frame rate to 10 or 15 or maybe less than 24? What will happen while recording it? क्या होगा? Movement will slow down. Movement will slow down, or we'll see again some lag in between. There won't be a continuous flow of motion. You won't see a flow in motion. है? Speed भी fast हो जाएगी. नहीं, देखो क्या होगा. स्पीड तो वही रही, चीजें उतनी ही तेजी से चल रही हैं. रिकॉर्डिंग दूर हो रही है. रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसका उस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. वो इंडिपेंडेंट है, रिकॉर्डिंग अलग एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस चल रहा है. सो स्पीड कैसे फास्ट होगी? स्पीड तो वही होगी जिस तेजी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है. उसको ऐसा बना दिया गया, उसको उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी हो गई है. ठीक है. Okay, so now we can see 15 FPS boost. What is happening right now? Glitch है. Lag आ रहा है. Lag आ रहा है. ऑनलाइन देख पा रहे हो तुम? हाँ. अगेन 10 FPS और कम हो गया. क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है यहाँ पे? लाग आ रहा है. दिख रहा है भास्कर? लाग. तुम ये सारी चीजें छोड़ दो कि कितना FPS है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना FPS है. हम वीडियो को देख के थोड़ा बता सकते हैं कितना FPS है. नहीं पता हमें. हमें क्या पता है वो बताओ. हमें क्या दिख रहा है आगे? क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये सब भूल जाओ. ये क्या हो रहा है? विगल भी हो रहा है क्योंकि कैमरा भी हिल रहा है हल्का सा. ठीक है. अच्छा, और वीडियो स्मूथ है क्या? वीडियो स्मूथ नहीं है. तो हमें ये तो पता चल रहा है कि रुक रुक के चल रहा है. मतलब नाउ दैट फ्रेम इज स्टेइंग देयर फॉर सम टाइम. लाग का मतलब क्या है? फ्रेम वन सिंगल इमेज इज स्टेइंग, टेकिंग अ क्वाइट लॉन्गर टाइम दैट इट शुड टेक. यही हो रहा है. FPS जितने भी होंगे उससे हमें मतलब नहीं. दैट इज दिस इज नॉट रियल टाइम. वी कैन ऑल्सो से दिस इज नॉट रियल टाइम. In accordance with us, this is not real time. और ये रियल टाइम पे नहीं चल रहा है. ओके. तो ये हमें पता चल गया. अगर हम 24 से कम कर देते तो अगेन लैग आएगा एंड दिस मोशन विल बिकम स्टॉप मोशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टॉप मोशन और पपेट मोशन. सो अगर स्टॉप मोशन बनाना है, वी कैन ड्रॉप आवर फ्रेम्स बिलो 24 to 10 or 15 and we can see this. Okay, let's now increase the FPS to 60 and ये देखते हैं. ये देखो ये कैसा दिख रहा है. दिस इज क्वाइट स्मूथ. लैग दिख रहा है क्या? है ना? क्या ये फास्ट है या स्लो है? फास्ट स्लो तो नहीं है ना. ये स्मूथ है. दिस इज क्वाइट स्मूथ because we have captured a lot of motion in it. ठीक है. so this is quite smooth. okay, now after this, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया अभी? 24 से कम कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं. तो now if I increase, let's see ये now increasing the recording FPS to 100 times more, 2500 FPS इस पे कर रहे हैं. तो क्या होगा? लेट्स सी. यहाँ पे आते हैं. ये ऐसे एक्सप्लोड करेगा इसको, है ना? एक सेकेंड.
ठीक है, 1 सेकंड का ही था एक्सप्लोजन वो, ठीक है। तो कितने FPS रिकॉर्ड किए, हाउ मेनी FPS, हाउ मेनी फ्रेम्स वी हैव इन अ सेकंड नाउ, 2500 1 सेकंड में, ओके। 2500 फ्रेम्स हमने रिकॉर्ड किए। What will happen if I play all those frames in the same FPS? Same will happen. Slow या fast जैसा तो कुछ होगा नहीं, same output will be happening, ठीक है। Okay, now as I have so much of motion, I can now play with the motion, ठीक है। I can slow it down, I can see lesser frames. If I decrease the frame rate even to 100, that would be quite slow. But I won't be able to, there won't be any lag in between because 24 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। So now what they have done, they now played back in slow motion. ये अब 24 FPS की पेस की रिकॉर्डिंग हो रही होती, ये फ्रेम बनता ही नहीं, we wouldn't be able to see this frame because कैप्चर ही नहीं हुआ होता। और ये इतना स्लो है that this person doesn't know that this thing has exploded. अभी भी नहीं पता चल रहा है उसको, we cannot see any expression on his face, ठीक है। so this is quite slow. so slow motion कौन बना रहा है? with the help of the camera we are trying to capture the motion as much as we can, and in the software we are now playing with the FPS, we are slowing it down, we are making it a time lapse. तो सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है ना, सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट क्रिएट स्लो मोशन, इट कैन एडिट अ वीडियो इन सच अ वे दैट इट शुड लुक लाइक अ स्लो मोशन और अ टाइम लैप्स, ठीक है। तो स्लो मोशन में हमें ज्यादा फ्रेम्स चाहिए, इसका जस्ट ऑपोजिट टाइम लैप्स। अगर हम टाइम लैप्स की बात करें, व्हाट इज अ टाइम लैप्स? जैसे ये देखें, now what is this happening? तो वीडियो का जो शूट करने का टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, शो करने का मतलब बहुत कम है। कितने दिन हो गए? पर क्या 4 दिन हो गए? नहीं हुए, है ना। तो थोड़े से टाइम में ज्यादा देख लेना, दैट इज टाइम लैप्स। if you even shoot this as 25 fps, there won't be a problem. तो फ्रेम्स बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा कैप्चर करने की जरूरत है, ठीक है। so day 8, so this is happening, so this is sprouting and dancing and everything is happening here, ठीक है। so this is time lapse, ये समझ में आ गया। so we have all these kinds of videos and now we can edit it in Premiere. तो ये वीडियो का फंडा क्लियर है, वीडियो क्या है। ऑलराइट, आफ्टर दिस एडिटिंग क्या होती है ना। एडिटिंग की बात करते हैं। सो व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग हम जैसे इमेज एडिटिंग भी करते हैं, तो कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम इन एनी केस, एनी डे इट विल रिमेन सेम। एडिटिंग वीडियो की केस में क्या है? फॉर एग्जांपल ट्रिमिंग द वीडियो, कट कॉपी पेस्ट वाला काम, ऑलराइट। ट्रिम करना है, कलर करेक्शन और रीसीक्वेंसिंग द वीडियो, है ना, which is very important. For example, if I have a shoot, we are shooting a movie, first shot we are shooting, it is of 2 seconds and has to be shot at US, okay. Second shot 2 seconds again from India, third shot 2 second, ये ब्रेक डाउन बना रहे हैं ना, अगेन US, है ना। ये 3 शॉट की मूवी है, 8 सेकंड की मूवी है, और ये ऐसी ऐसी लोकेशंस है। अब इसको शूट कैसे करेंगे?
ऐसे करके शूट कर लेंगे सब कुछ एंड बाद में उसको कंपाइल करेंगे. तो पहले जाना पड़ेगा हमें यूएस, तो टिकट कटा के यूएस चलते हैं, वहाँ पे शूट करते हैं, फिर टिकट कटा के वापस आते हैं, इंडिया शूट करते हैं, फिर ऐसे नहीं करेंगे. अच्छा फिर क्या करेंगे? पहला शॉट ले लेंगे, थर्ड शॉट यूएस में ले लेंगे, देन इंडिया में शूट कर फिर इंडिया में शूट कर लेंगे. तो ये हम तभी तो कर पा रहे हैं जब हमारे पास एडिटिंग की पावर है. अगर एडिटिंग की पावर ही नहीं होती तो हम इतना सोच भी नहीं पाते. ठीक है. और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते विदाउट एडिटिंग तो मूवी का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता. ठीक है. तो ये एडिटिंग है. ओके तो ये कर सकते हैं हम. सो दिस इज एडिटिंग. और इसके बाद सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ वीडियो एडिटिंग. एंड अच्छा कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास. लेट्स लुक इनटू इट. Premiere. So we have some basic broadcasting standards in here. Broadcasting standard. Broadcasting मतलब broadcast कर रहे हैं. टीवी पे आता है. जो टीवी पे आता है वो क्या हमारे टीवी पे आता है? नहीं, वो सबकी सभी के टीवी पे आता है. ब्रॉडकास्ट. ब्रॉड बहुत बड़ी जनता है और वहाँ पे हम कुछ कास्ट कर रहे हैं. सो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है. सो अगर कोई इंसान, if a single person in his private space is watching something that is quite different from a country or a nation, or the entire world is watching the same thing on a different devices at the same time. So there must be some standard which this video and those broadcasting instruments are following. होना चाहिए सेम यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए, नहीं तो दिस कैनॉट बी पॉसिबल. सो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं. ऑलराइट. सो अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे डिवाइस से प्ले होने, कोई टेलीविजन पे देख रहा है, somebody is watching it on YouTube सेम टाइम पे. आजकल तो हो जाता है, टीवी पे भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है, लाइव हो गया वो. ऑलराइट. और डिफरेंट डिवाइसेस, फोन में भी वही वीडियो चल रहा है ना, वट एवर द साइज ऑफ योर टेलीविजन. तो सब पे एक ही वीडियो चल रहा है. एंड द वीडियो शुड लुक स्मूथ. द वीडियो शुड हैव द सेम FPS. इट शुडंट क्रॉप. वो सब कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो इन दैट केस वी नीड टू हैव सम यूनिफॉर्मिटी, एंड दीज आर ऑल दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रॉडकास्ट. सो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे विच इज NTSC. दिस इज क्वाइट ओल्डर फॉर्मेट. सबसे पहला है ये. NTSC stands for National Television System Committee. It started it invented it in US में इन्वेंट हुआ था ये. और इसके बाद हम देखेंगे पाल इज अगेन फेज ऑल्टरनेटिंग लाइंस. ये इन्वेंट हुआ था UK में. ठीक है. तो ये इंग्लिश स्टैंडर्ड है. ये वाला ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है. ये वहाँ पे उन कॉन्टिनेंट्स में यूज भी होता है. टिल नाउ दे यूजिंग इट. ठीक है. एंड वी आर यूजिंग दिस पाल इन एशिया में पाल यूज हो रहा है. ऑलराइट. सो ये यूके का है, ये यूएस का है. देन वी हैव अ माइनर फॉर्मेट कॉल्ड CCAM व्हिच वाज डेवलप्ड इन फ्रांस. तो ये फ्रेंच स्टैंडर्ड है. इसका फुल फॉर्म है सीक्वेंस विद कलर मेमोरी. सो NTSC, PAL एंड CCAM. तो ये 3 ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स है, वर्ल्ड वाइड ये यूज होते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लाइन्स. ये नंबर ऑफ लाइन्स क्या है? सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड स्कैन लाइन्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टू हैव एन इमेज वी नीड टू हैव पिक्सल फर्स्ट. So pixel by pixel and it will create an image. But to form a video, we cannot form a video by pixels. Pixel by pixel we cannot generate a video. पहले ऐसे ही होता था, पिक्सल बाय पिक्सल ही वीडियो जनरेट होती थी. एंड वी कुड सी a lot of jitter and noise and instability in that video while playing. So what they did, who these engineers, we have a society called, this is SMPTE, SIMT. इसको भी SIMT बोलते हैं, है ना. And what SIMT stands for? Society of Motion Pictures and Television Engineers.
These people came up with the idea of scan lines. So what they did, they recognized that when we play a video pixel by pixel, it'll have a lot of instability, it'll wiggle, it won't be smooth. So they came up with this idea of scan lines. And what are scan lines? These are just groups of rows, and this entire row, and they group it into a scan line. So they have on an average they'll have one or two rows, and they'll group it into a scan line. And now while the video forms on a screen, it forms scan lines by scan lines. Okay, rows by rows. So these are scan lines. All right. So in case of NTSC, we can see we have 525 number of scan lines. Then PAL and CCAM 625 number of scan lines. FPS at least 24 to hona hi chahiye. In case of NTSC, we have 29.97. If we round it off, it will become 30. And then here we have 25. Sizes 72480 इसका 72576. So size we can see कितना छोटा है. This is not half HD, है ना? Half HD से भी छोटा जा रहा है. So these are not HD videos, these are DVs, digital videos. DV and HDV दो तरह की वीडियोस हो सकते हैं. तो DV पहले बनाई जाती थी, डिजिटल वीडियो. नाउ वी हैव HDV, हाई डेफिनेशन वीडियोस. ठीक है, तो ये आ गया. ऑलराइट, दीज आर स्टैंडर्ड्स that we still use. Okay, now after this, let's have a look at the user interface of Premiere. Okay, so when you open the software for the first time, you will see the start window and some buttons here. You have your recent projects here, and new project, open project, and if you're working on cloud with your team, you can use team project. So we'll have to create a project first. It will give us this new project settings. So what is a project? Project is basically your file. So project file, it's a project file. So in case of Photoshop, what we were doing, we were opening Photoshop. ठीक है, हमने open किया Photoshop. We couldn't see anything. We created one file. To start working, we created a file, and that file will give us a canvas. That file is not giving us spreadsheets to work upon, because we cannot work on image with the help of spreadsheets. ठीक है, that file is giving us a canvas. That canvas is our work area. ठीक है, तो अभी हम क्या बना रहे हैं? प्रोजेक्ट बना रहे हैं. वी आर जस्ट ओपनिंग फोटोशॉप. इट्स लाइक दैट, वी आर ओपनिंग फोटोशॉप. ठीक है, एंड बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फर्स्ट. ओके, सो I'll name the project, and I have to choose a location to save my project into. So I'll browse, I'll choose one folder. Let's create one and select your folder. ठीक है, तो यहाँ पे I'll have all my files saved here. And after this, video rendering and playback. So what will render and playback your video? A render engine. What render engine do we have here? We have two render engines. GPU भी है, graphic card is also working, and software only, normal processor is also working. ठीक है, so Mercury playback engine and GPU is also on. All right, after this, we have three options here: video, audio, and capture. So in case of video, we can see display format.
तो वीडियो यहाँ पे आइडिया क्या है कि वीडियो कैन ओनली हैपन इन टाइम, इमेज इज टाइमलेस, देयर इज नो सेंस ऑफ टाइम इन एन इमेज, बट वीडियो कैन ओनली हैपन इफ यू हैव अ रिकॉर्डेड टाइम। वीडियो और क्या है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ग्राफिक एक अलग चीज है और टाइम एक अलग चीज है। रिकॉर्डेड टाइम इज अ वीडियो एंड इमेज इज टाइमलेस। तो वीडियो की केस में हमें एक्चुअली वीडियो से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है इफ यू आर लुकिंग इट इनटू अ ग्राफिकल वे, बट टाइम का ही हमारे पास फॉर्मेट्स है, ठीक है। सो टाइम कोड जो अभी हमने देखा 00 hours minutes seconds वाला, this is time code. After this we have feet plus frame 16 mm, feet plus frame 35 mm, because these are two film size that we use in movie making, 16 mm का film and 35 mm का reel. All right, so what will happen after 16 frame 1 feet will it will become a feet, 16 frames of 16 mm and it will become a feet. And इसमें क्या होगा, after 35 frames it will become 1 feet. फीट इज ऑल्सो यूनिट, इधर एक यूनिट है मेजर करने का कि रील कितनी बड़ी है हमारी, ठीक है। तो वो भी यूनिट्स है हमारे पास। एंड आफ्टर दिस वी हैव ओनली फ्रेम्स। सो व्हाट आर these are display formats, that means we can change it while working also, we can change these formats according as per our convenience. And after this audio में क्या है, display format, we have two display formats, audio samples, those waveforms, and millisecond, that means in time, ठीक है। ओके, एंड कैप्चर का कैप्चर फॉर्मेट, ये दोनों डिस्प्ले फॉर्मेट थे, बट दिस इज कैप्चर फॉर्मेट, वी कैन नॉट चेंज द कैप्चर फॉर्मेट, ठीक है। सो वी हैव टू चूज इट राइट नाउ। वी हैव टू थिंग्स, डीवी एंड एचडीवी। तो एचडी है वीडियो, विल चूज एचडीवी, एंड डीवी है वीडियो, विल चूज डीवी, ठीक है। ऐसे क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते हम, डीवी वीडियो शूट करके एचडीवी ले लें तो क्वालिटी बढ़ जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो एचडीवी। ओके, आफ्टर दिस, अच्छा स्क्रैच डिस्क, यू नो स्क्रैच डिस्क क्या होता है ना, जहां से हमारा सॉफ्टवेयर खुल रहा है, सी ड्राइव, बट दिस स्क्रैच डिस्क इज फॉर द प्रोजेक्ट। सो जहां पे हमारा फोल्डर बना हुआ है, द पाथ वे वी हैव सेव्ड आवर फोल्डर, सो इट इज शोइंग मी दैट 9.95 GB is empty and you can have this much bigger project, ठीक है, this much volume we can have. ओके, ingest setting, ये तो हम बाद में करेंगे, ingest भी करना है ना while rendering it, will ingest after that. ओके, तो ये सेटिंग्स आ गई हैं। ओके किया हमने, वी एंटर इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट। सो ये देखो फाइल खुल के आई है, अभी तक कुछ बना नहीं है, नो वर्क स्पेस, नो वर्क एरिया, नथिंग, सिर्फ सॉफ्टवेयर खुला है, फोटोशॉप खोल दिया हमने, ठीक है। ओके, नाउ एक सेकंड, हेलो, अरे कुछ भी, वो तो कल ही निकाल लिए होंगे गोपाल ने। अच्छा रुक जाओ, मैं भी आता हूँ क्लास के बाद। तो अच्छा, अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो, लुकिंग इनटू द यूजर इंटरफेस, ऐसे खुलेगा ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फोटोशॉप में बहुत बेसिक विंडोज दिखती थी हमें, आफ्टर इफेक्ट्स में हमने देखा था काफी सारे विंडोज थे। नाउ सेम इन हियर वी कैन सी मल्टीपल विंडोज, ठीक है। तो अभी हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या हमें देख के पता, कैन वी लुक इनटू द यूआई, प्रोजेक्ट पैनल, आफ्टर इफेक्ट्स पे भी हम यहीं से शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट पैनल से। एंड इट शुडंट हियर इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, सो हमें मीडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, इमेज, इट कुड बी एन ऑडियो, इट कुड बी अ वीडियो, एनीथिंग। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स ब्रिंग इन some image. So I have these images and images है, what can I do, I can just select all the images and drag and drop here like this, ठीक है। अच्छा, now
there is a difference. A person who is doing Premiere for the first time will have to look into this. That in case of Photoshop, we bring any image in Photoshop and that image becomes a part of your Photoshop file. ऐसे ही होता है. But in this case, we are importing images here. That means the software is reading the path of this file from this window. That means if this image someday if it gets deleted, you won't be able to see it here. ठीक है. So इसके लिए अब क्या करें? So the better way of doing this is just copy your image, all the media, and first paste it inside your project folder. ठीक है. And bring these images from here. So now Premiere is reading the same path. You can see, check in properties also, folder on the desktop. So it is reading this path, and while switching locations, you can carry this entire folder, so you won't be having some missing links or missing files. ठीक है, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी. So this is must to carry all your files, all your resources, all your files that you have imported, plus Premiere Pro project file also. Otherwise, it is of no use. So yes, as we have imported images here, after importing images, as I've told you, if you want to check properties, you can come here. All the properties are visible. Size kya hai, type kya hai, everything else. So after importing images, second step. So first step is importing your media. Import media kiya humne. Next step is previewing your media. So how to preview? Double click here, and it'll open up over source monitor. Source monitor में दिख रहा है. This is source monitor. ठीक है, कुछ भी देख सकते हैं. वीडियो है, it'll play it back with audio also. ठीक है. So it is just a player, जैसे मूवी प्लेयर देखा था हमने. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. Alright. So second step is previewing. Third step is to create a sequence. है ना, sequence. So अभी हमने क्या create किया है? We just created a project, and inside a project now we are creating a sequence, and will work inside sequence. So sequence will be our work area. Okay. तो next हमें बनाना है sequence, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि drop media here to sequence, to create sequence. So I can drop this image here and get a sequence. So now in sequence, in this work area, this is also called timeline. Timeline भी दिख रहा है ना, time भी दिख रहा है, and we can also see tracks. So in this direction, upward you can see video tracks, downwards you can see audio tracks. ठीक है, तो visual element है तो ऊपर आएगा image, text, whatever, और नीचे की तरफ audios. ठीक है, तो ये आ गया image, आ गई, हमने image रख दी यहाँ पे, and this complete thing is track. This complete column is one track, जैसे video track 1. Inside this track we have our content, and this content is called clip inside Premiere. तो ये clip रखी है हमने यहाँ पे. This is still clip. Okay. तो ये मैंने delete कर दिया अभी. Sequence का भी एक icon दिख रहा है हमें. We can see one icon for this sequence. Let's delete this. Sequence चला गया. ठीक है. अभी हमने drag and drop करके sequence बनाया, like we drag images inside Photoshop and we get canvas from the same settings. ऐसे ही होता है. कैनवस एक्सेप्ट कर लेता है ना, कितने मिलियन पिक्सल्स है, क्या रेशियो है, क्या साइज है, सब कुछ. ओके, बट हमें खुद बनाना है. खुद भी तो बनाने की जरूरत पड़ सकती है. ऑलराइट, सो खुद कैसे बनाएंगे? सो विद कंट्रोल एन यू कैन क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस ऑफ योर ओन. यहाँ पे आके बना सकते हैं, एंड वहां पे भी प्रीसेट्स दिखते थे, यहाँ पे भी प्रीसेट्स दिख रहे हैं. ऑलराइट, तो प्रीमियर कहाँ किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है? मेजरली ऑफ वीडियोस, वीडियो इंडस्ट्री. तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द कैमरा वी कैन सी डिफरेंट फॉर्मेट्स, है ना. दीज आर डिफरेंट कैमराज. कैनन है, DSLR है, DNX HD है. दिस इज अकॉर्डिंग टू साइज, दिस इज अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट, this is again according to size and quality. This is camera, this is projection, VR, and all those formats.
ठीक है, तो इनसाइड दिस वी कैन कम डाउन हियर, जैसे यहाँ पे आ गए और ये देखो इसके अंदर भी वी कैन सी डिफरेंट फोल्डर्स, डिफरेंट कैटेगरीज. तो 1080i50, व्हाट डज दैट मीन? 1080 मतलब 1920 1080 वाला बोल रहा है, and 1920 1080. I'll see this description here. पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल रहा है. So DNX HQ high quality 1080i 50. 50 means 50 FPS. So लेकिन ये फ्रेम रेट उसमें जो प्रॉपर्टीज में 25 नहीं दिखा. हाँ, ये 25 FPS लिखा है. 50 वाला ये चेंज हो रहा है यहाँ पे. फ्रेम रेट 29.97. इसका हाफ दे रखा है हमें ना, बिकॉज दिस इज DNX HD. अगर हम HR में आए, हाई रेजोल्यूशन में हमारे पास 2K 24, तो ये 24 है. और अगर हम देखें यहाँ पे ठीक दिखा रहा है, ये DV में 24, यहाँ भी 24. ये साइज की वजह से कम हो गया. HDV में आए 25 और यहाँ पे भी 25 दिखा रहा है. उसी केस में चेंज है बस. ठीक है, यहाँ पे सारे सेम जो भी यहाँ लिखा है, अगेन डिस्क्रिप्शन में भी. अच्छा, तो सारे साइजेस हमें मिल जाएंगे. वी हैव टू नोटिस वन थिंग, दैट यहाँ पे अगर हम HDV में भी आए तो यहाँ पे जैसे लिखा है HDV 1080i25 और दूसरा है HDV 1080p25, है ना. ऊपर भी ऐसे I और P दिख रहा था हमें, यहाँ पे I और P भी है, देखो P वाला भी है और I वाला भी है. सो व्हाट इज I and P? This is again generation of your scan lines, how your scan lines are generating, उसका generation method है. Alright, so we can have two generation methods of scan lines. I stands for interlaced, P stands for progressive. ठीक है, अब ये क्या है? So for example, scan lines बनती है, scan lines बन रही है. scan lines कैसे बनती है? Footage looks extremely mucky. So I thought a good natural progression to that video of watching 24 and a 24 just to your eye with the refresh rate of this screen. The frames है ना, ये ऐसे विगल विगल करता है. 25 तो ये 25 रिकॉर्ड कर रहे हैं टीवी को कि वो स्कैन लाइंस कैसे बन रही हैं. ऑलराइट, time. Now 1600 1600 FPS पे we can see second, you can actually just a single line, moving top to the bottom of your है ना, lens on a CRT screen. एक single Only line. the active line of pixels that's bright, and your persistence of vision will actually build that into a complete image. Messing with my eyes, this. So screen पे we have one active scan line, but because of persistence of vision we see the entire frame. ठीक है, It's like a dance move. and how slow and fast it is. God. Let's see, Now differentiate 2500. frame being built from top to bottom. It takes an extremely fast ये camera to देखो, see that each frame is built line by line 28,500 from top to FPS. bottom. But it takes an even faster camera to see that each line is एक drawn लाइन भी left बनने to में right. टाइम ले रही है. Slow down to 28,500 frames a second. We're now seeing glimpses of that, but we do need to go even slower. This is now 118,000 frames a second. I'm going to put the stats up for you here. कितना? 1,18,000. कितना स्लो हो गया? एक सेकंड में 1,18,000 फ्रेम्स. From left to right on the screen. Now 146,000 frames. 1,50,000 फ्रेम्स. To gain perspective on just how slow this actually is, you can see the exact time I shot this. So this is hours, it is just past midnight, 23 minutes, 41 seconds. This is a tenth of a second, a hundredth of a second, 1,000th of a second, or a millisecond.
And then over here, you've got a 10,000th of a second, a 100,000th of a second. And Alright. this unit here is the तो इस तरीके से स्कैन लाइन जनरेट होती है. अब इसके भी दो मेथड्स हैं. ऑलराइट, सो INP जैसे अभी हमने पढ़ा. सो I में क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग लाइंस विल फॉर्म फर्स्ट, है ना. जैसे ऑल्टरनेट में भी दे कैन बी टू थिंग्स. जैसे क्या हो सकता है कि पहले इवन वाली आ जाए, सो इवन स्कैन लाइंस विल फॉर्म फर्स्ट, ऑड बाद में आएगी, या ऑड भी पहले हो सकती है, फिर इवन विल कम आफ्टर दैट. सो इवन एंड ऑड, ठीक है, बट ऑल्टरनेट, इट विल हैपन इन ऑल्टरनेट लाइंस. सो आई हो गया. प्रोग्रेसिव में क्या होगा, 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो वो प्रोग्रेसिव है. यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे यूज, अब इनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है. तो जो आई वाला है वो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होगा. आई वाला सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग में यूज होगा. उसके अलावा प्रोजेक्टर पे देखना है, यूट्यूब पे देखना है, कहीं भी प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है. तो आई वाला सिर्फ ब्रॉडकास्ट के लिए. ओके, तो ये आ गया अपने पास. वो कैसे टीवी पे चला रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर रहा था वो, तो उसमें सिंगल दिख रहा था. ओके, तो ये है INP. आफ्टर दिस, इफ यू वांट टू कस्टमाइज योर फ्रेम और दी सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन का तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो प्रीसेट्स दिख रहे हैं. सो फॉर दैट यू विल हैव टू कम टू सेटिंग्स, दूसरा टैब सेटिंग्स. सेटिंग्स में अगेन वी कैन सी this is logged currently, frame size, horizontal, vertical, it is logged. So again we cannot change. But if I come here, editing mode, and click on custom, now I can change it. Now I can customize the size. I can also customize the time base, FPS, all these things. Pixel aspect ratio, we keep it square for most of the time. Fields, upper field, lower field, or progressive. We can change the generation methods. These are also called fields. And display format जो हमने बाहर भी देखा था प्रोजेक्ट में. ऑडियो का अगेन सेटिंग, सैम्पल रेट्स इज 48,000 Hz by default. डिस्प्ले फॉर्मेट ऑडियो सैम्पल्स. वीडियो पता चल गया, ऑडियो पता चल गया. नाउ व्हाट इज वीडियो प्रीव्यूज? सो प्रीव्यूज आर बफर्स, है ना. बफर वीडियो चल रही है तो पहले इट विल कैश इटसेल्फ एंड देन इट विल प्ले, ठीक है. जैसे इंटरनेट से भी प्ले कर रहे हैं तो बफर होती है. बफर मतलब इट इज सेविंग इटसेल्फ इन अ रैम एंड देन वहां से प्ले बैक हो रही है. इंटरनेट से डायरेक्टली प्ले करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. ओके, तो ये प्रीव्यूज है. प्रीव्यूज यहाँ पे बनेंगे. इट विल अगेन गेट सेव्ड इनसाइड दिस फोल्डर, जो प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पे प्रीव्यूज बन जाएंगे. एंड यस, सो प्रीव्यूज भी आ गया. So previews भी हम सेव कर लेंगे. यहाँ पे we have different formats. We'll talk about them when we start rendering our videos. So ये सारी चीजें, and we can also, if we are customizing, we can also save our preset and it will show up here. Next time you can get it here. and यहाँ पे sequence को name कर सकते हैं. Sequence का name क्या रखना है? We have default number of tracks, 3 video tracks and 4 audio tracks for now. वीडियो में, ऑडियो में चैनल्स भी हमारे पास कितने चैनल्स चाहिए. वी वांट टू हैव स्टीरियो, 5.1, मल्टी चैनल एंड मोनो. सो मोनो मींस सिंगल चैनल इज वर्किंग, एवरीथिंग इज इन दिस वन चैनल, ठीक है. स्टीरियो में डिफरेंट चैनल्स कैन हैंडल डिफरेंट आउटपुट्स ऑफ ऑडियो, ठीक है. और 5.1 में और ज़्यादा मतलब डेटा उतना ही है, बट हमारे पास आउटपुट्स इतने सारे हैं. और ऐसी मल्टी चैनल भी अलग अलग. तो ये किया जा सकता है. और VR वीडियो, अगर VR वीडियो बना रहे हैं तो प्रोजेक्शन भी उठा सकते हैं, कितना बड़ा चाहिए. अभी नन कर देते हैं इसको. तो ये सीक्वेंस आ गया, ठीक है. तो यहाँ से ही बनाया जा सकता है. नाउ लेट्स वी टेक ये, तो 1920 1080 आ गया. फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर 1 एंड और सारी चीजें हमें दिख रही हैं. ओके क्या हमने, ठीक है, ये आ गया अपने पास. सो ये सीक्वेंस बन के आ गया. अब यहाँ पे भी हम ड्रॉप कर सकते हैं 1 by 1. तो देखो कहाँ पे ड्रॉप हो रही है ये वीडियो ट्रैक. ऑडियो में इट वोंट गो इन ऑडियो ट्रैक,
तो ये देखो ये आ गई. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय स्टिल क्लिप. ठीक है. और ये सारे बटन्स एक दो तो पता ही होंगे तुम्हें ना, आई यू कैन टर्न इट ऑफ. ठीक है. ये सारी चीजें वी कैन सी दिस scroll bar here. This is what we are zooming it in time. We are zooming in time. Okay, and this is what, this is time ruler और CTI है ना. इसकी वजह से हमें पता चल रहा है हम टाइम में कहाँ पर है. एंड दिस इज डिजिटल वे ऑफ लुकिंग एट टाइम है ना. कितने 24 फ्रेम पे है हम. ठीक है. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो हम जंप भी कर सकते हैं ना, 1 सेकंड पे जंप करना है तो वहां पे चले गए. तो ये भी हो सकता है. तो यहाँ तक चीजें क्लियर है. ओके. So you can make a sequence like this, and after this let's see one thing to begin with. Let's make a slideshow, an automated slideshow है ना. ये सारी सेटिंग, इसमें कोई डाउट तो नहीं लग रहा है अभी. ठीक है. तो एक ऑटोमेटेड सीक्वेंस बना के देखते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज ऑटोमेटेड सीक्वेंस? यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग स्लाइड शोज. क्विकली स्लाइड शोज बनाने अगर, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं. एंड हाउ टू स्टार्ट विद दैट? इमेजेस सेलेक्ट करिए हमने अपनी, in whatever order you want. After this, after selecting all your images, click here. Image select नहीं करोगे तो this won't appear. So after selecting your images, this is the button. First one, automate to sequence. है ना. इस पे क्लिक किया हमने, and first is from class 1.premiere pro project. ठीक है. कहाँ जा रहा है ये? यहाँ से टू सीक्वेंस 01. मतलब इसका मतलब है फ्रॉम प्रोजेक्ट पैनल इट इज शिफ्टिंग ऑल दी इमेजेस टू हियर, टू सीक्वेंस 01. ओके. इन विच ऑर्डर? वी हैव टू ऑर्डर्स, सॉर्ट ऑर्डर एंड सिलेक्शन ऑर्डर. The sort is alphabetically, we'll sort, and selection order the way we have selected. Okay, तो कुछ भी ले सकते हैं अभी, doesn't make any point. टू सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ पे कैसे आएगा? प्लेसमेंट इज सीक्वेंशियली. सीक्वेंशियली मतलब आगे की तरफ अलाइन होके आएंगे, आगे की तरफ प्लेस हो जाएंगे. ओके. आफ्टर दिस वी हैव मेथड. अभी हम कुछ भी, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. वी आर जस्ट हैविंग अ ब्रीफ आइडिया. मेथड लिखा है यहाँ पे. मेथड वी हैव इंसर्ट, एडिट एंड ओवरराइट एडिट. अच्छा, ये क्या होता है ना, ये समझा जा सकता है. इंसर्ट, एडिट एंड ओवरराइट एडिट से पहले भी, ठीक है, ये एडिटिंग का मेथड्स भी होते हैं एंड स्टोरी टेलिंग के मेथड्स भी होते हैं. सो देयर आर टू वेज अ स्टोरी कैन बी टोल्ड. देखिए, स्टोरी टेलिंग के और एडिटिंग के भी सेम, बिकॉज हम एडिट कर रहे हैं तो हम स्टोरी ही टेल कर रहे हैं इस तरीके से या किसी भी तरीके से, जो भी मैनर है. सो टू वेज. फर्स्ट इज लीनियर storytelling or editing, or second is non-linear. So linear and non-linear methods of storytelling. Okay, so linear में क्या होगा? अगर हम storytelling की बात करें पहले, so what is linear storytelling? Linear storytelling मतलब अगर सीधे सीधे हम बात करें, जैसे there is a kid, he grows up, he become an adult, he got married and he dies. सीधा सीधा तरीका. इस तरीके से भी स्टोरी देखी है हमने मूवीज में. सो दिस इज लीनियर वे. नॉन लीनियर मतलब समथिंग हैपेंस एंड फ्लैशबैक, है ना. अब कैसी मूवीज आ रही है, पहले कुछ और दिखाते थे, देन प्रीक्वल्स आफ्टर प्रीक्वल्स, द गोइंग बैक, ठीक है, एंड फ्लैशबैक्स. सो दैट इज नॉन लीनियर. तो उससे क्या इंटरेस्ट आता है थोड़ा सा, है ना. बट इट इज ऑल्सो द डिमांड ऑफ द स्टोरी. इफ स्टोरी इज डिमांडिंग दैट काइंड ऑफ एडिटिंग, तभी हम करेंगे. सबको तो नॉन लीनियर नहीं कर सकते फिर, अगर स्टोरी की डिमांड ही नहीं है तो.
सो लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर, अब एडिटिंग की बात करें अगर हम, एडिटिंग तो लीनियर नॉन लीनियर हो सकती है, सॉरी स्टोरी टेलिंग की बात करें हम तो स्टोरी टेलिंग लीनियर नॉन लीनियर हो सकती है। एडिटिंग भी ऐसे, एक तो एक डायरेक्शन में हो सकती है, इन जस्ट वन डायरेक्शन, आगे की तरफ एडिटिंग जो पहले हुआ करती थी व्हेन वी डिडंट हैव एनी सॉफ्टवेयर्स। कैसे एडिटिंग कैसे होती थी पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं थे, फिल्म को काट काट के फिल्म्स को काट काट के स्टिच कर देते थे, तो वहां पे एडिटिंग होती थी। अब इन दैट केस अगर हमारे पास वी हैव 10 शॉट्स एडिटेड इन फिल्म्स इटसेल्फ, नाउ गोइंग बैक इज एक्सपेंसिव, यू मे आल्सो ruin द फिल्म, ऐसा भी हो सकता है। सो उसको इतना नहीं छेड़ा जाता था, ठीक है। अच्छा, तो वो लीनियर एडिटिंग हो गई। अब जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं, इनसाइड सॉफ्टवेयर वी आर डूइंग नॉन लीनियर एडिटिंग। नॉन लीनियर, इनसाइड नॉन लीनियर एडिटिंग we have two more methods: insert edit and overwrite edit। ये चीज, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इंसर्ट एडिट। अच्छा, इसको कैसे समझ सकते हैं, आई नीड टू हैव पेंट एंड एडिट कर रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल थियोरेटिकली अभी हम समझ सकते हैं। सो इफ वी हैव ट्रैक्स, देखे ना हमने ट्रैक्स, वहाँ पे ट्रैक्स बन रहे हैं। सो दिस इज वन ट्रैक, ट्रैक वन, दिस इज ट्रैक टू, है ना, ये ट्रैक टू आ गया। दिस इज ऑफ मे बी 2 seconds, दिस इज मे बी ऑफ 5 seconds। तो ऐसे दो ट्रैक्स हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ दो ट्रैक्स की मूवी है, दिस इज वन मूवी of 7 seconds. After editing, what happens? The director wants some changes. What kind of changes? He's having one more shot of let's say 2 seconds का एक one more shot एक है हमारे पास. He want it to be inserted here, inserted in between. ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखो क्या चेंज आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूरेशन विल इंक्रीज, sequence will also change, the sequencing will also change. ये होगा, ठीक है, मूवी का टाइम भी बढ़ जाएगा. तो दिस इज इंसर्ट एडिट, कंप्लीटली यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं बीच में, ठीक है. व्हाट इज ओवरराइट एडिट? दिस डायरेक्टर वांट्स दिस टू बी ओवरराइटेड विद दिस 5 सेकंड, तो वो ऊपर आ जाएगा 5 सेकंड के, 2 सेकंड का नया जो शॉट है दैट विल कम अबव द 5 सेकंड ट्रैक, क्लियर हो जाएगा direct। लेयर हो जाएगा ऊपर. सो उससे मूवी का टाइम नहीं बढ़ेगा, है ना, और वो एक नया शॉट भी आ जाएगा. गेटिंग द आइडिया? ऑलराइट, सो ये दो तरीके, ये दो ही चीजें हो सकती हैं फिर, ठीक है. तो यही बोल रहा है वो, इंसर्ट एडिट एंड ओवरराइट एडिट. अभी दोनों में से कुछ भी चूज करे, कोई भी पॉइंट नहीं है, कुछ भी चूज कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम ही बना रहे. ओके, क्लिप ओवरलैप. व्हाट इज दिस क्लिप ओवरलैप? जो द ट्रांजिशन वाला टाइम है ना, वन शॉट इज नाउ ओवर एंड सेकंड वन इज स्टार्टिंग, दैट इज क्लिप ओवरलैप टाइम. ओके, व्हाट do we want to have in this overlap period? We can have this transition, clip overlap, मतलब वहाँ पे ट्रांजिशन आएगा. which transition? apply default video transition, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है बीच में? still clip duration. still clip means image की ड्यूरेशन कितनी होगी. you want to have in and out range. in and out range means यहाँ पे जो टाइम लिखा है 1.29 seconds, है ना, तो मतलब 2 सेकंड के आसपास. so by default it will come here aligned with 2 second with each image. तो कितनी हो जाएगी? 2 2 1 2 5, है ना, 10 सेकंड का आ जाएगा अपने पास, ठीक है. ऑलराइट, और every frame, every new image will contribute 15 frames to transition. 30 frames लिखा हुआ ना यहाँ पे, so 15 from one and 15 from the other, second one. So it will make 30 frames of transition. Okay,
frames per still कितनी देर रुकना है. We can also use this option frames per still where we are customizing the time, still time कितनी देर के लिए वो रुकेगी. So let's say 75 frames. So 75 frames, it will stay there, one image, or it will stay there, it will be visible for 75 frames, and 30 frames will go to transition. ठीक है, apply default video transition, and if you ignore the video, it won't form. It will not give you a new video. So let's not ignore the video. ये settings समझ में आ रही है, कुछ change नहीं किया हमने, and okay, and we have a slideshow. चल क्यों नहीं रहा? Some problem I could see, so I can move this time ruler manually, and this is a video that we have. ठीक है, इस तरीके से वीडियो बन जाएगी. सो ये क्या है, स्लाइड शो है विद अ ट्रांजिशन इन बिटवीन. तो ये किया जा सकता है. यहां तक समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ओके No, sir. ओके, तो ये बना के देखो फिर. ठीक है, तो अभी इतना ही देखो. यूजर इंटरफेस देखो, प्ले करके देखो इससे, और ये बना के देखो स्लाइड शो. ठीक है. Today is Friday. ये वाला है अपना. इसको चेंज कर लेते हैं. Premiere. So वैभव आएगा इसमें, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं. इनको हटा देते हैं. ठीक है, और आज है क्या नाम, महिमा. महिमा, महिमा बीसी नंबर है तुम्हारे पास अपना? Yes, sir. I'll just pull it up. 1 second.